I will wait for 5 minutes and then I will start. So we will start.
topic. Okay, it is a topic of 4 marks which comes in exam. In 8 papers it is asked. It is not के 10 or 10, but polymorphism और inheritance हो गया या constructor destructor हो गया, ये सब C++ के main advantages हैं. So these answers are always asked, are the main features. So these answers are asked. So ये answers आप skip मत करना. Okay, like all this. So what does polymorphism mean? Okay, पॉलीमॉर्फिज्म कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है, उसने 2-3 कंसेप्ट को साथ में लेके एक अपना एक टॉपिक बना लिया है एज पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ पॉली मींस मेनी, ओके, एंड मॉर्फिज्म इज नथिंग बट फॉर्म्स. सो फॉर्म्स इज नथिंग बट मेथड्स एंड मेथड इज नथिंग बट द मेंबर फंक्शंस. ओके, व्हेन इन अ क्लास there are many member functions with the same name, those all comes under, जहां पर भी same behavior है, जहां पर भी same behavior है. Now what do I mean by same behavior? They can be same member functions, the name of the member function is same but with different parameters, or I say के इनहेरिटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं बट वो दोनों एक ही पॉइंटर से हो रहे हैं. दैट टॉपिक आई हैव टू टीच यू वर्चुअल फंक्शन, और वो एक ही से हो रहे हैं. सो जहां पर भी मोर देन 2 का कंसेप्ट आता है बट ऑफ द सेम बिहेवियर, मतलब एक ही चीज को हम 2 उसमें बांट रहे हैं और 3 2 और मोर, at that time that topic will come under polymorphism. Okay, so polymorphism basically refers to identically named member function, identically means same, that have different behavior, means अगर different उनके arguments हैं, एक में अगर एक ही argument है, second में 2 arguments हैं, depending on the object they refer. Object they refer में it is related to virtual function topic which I will take. So that is polymorphism. अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं लिखते हैं then also it's fine. Even if you only write that polymorphism refers to identically named member function and polymorphism is nothing but in one program you have many forms. Poly means many and morphism means forms. इतना भी आप लिखोगे तो वो काफी है एक सेंटेंस. And then polymorphism is basically divided into 2. This diagram is important and this is a 4 mark question. ये 3 marks के लिए आता ही नहीं है. Okay, polymorphism is divided into 2. सिर्फ ये एक लाइन लिखने का poly वाला you get 1 mark. For this diagram you have 1 mark. Compile time polymorphism इस बार आया था ये एग्जाम में. इसमें you have function overloading and you have operator overloading. In this you have virtual function. Okay. Polymorphism is basically divided into 2. Compile time polymorphism and runtime polymorphism. Now compile time polymorphism has function overloading and operator overloading, and runtime polymorphism has virtual function. अगर आप एग्जाम में इसको थ्योरी में इतना भी लिखते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं. ओके, के कंपाइल का ये दोनों है एग्जाम्पल और रन टाइम का ये एग्जाम्पल है. नाउ व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? What does compile mean? When you compile the program, that means when the compiler is still reading it, is still reading the statements what you have written, okay, and whatever statement you have written, according to that it matches the arguments which is there in the class, and then it gives you the output. Say for an example,
मीन्स बिफोर एग्जीक्यूशन ओनली द कंपाइलर नोज, जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, Alt F9, व्हेन आई एम कंपाइलिंग द प्रोग्राम, एट दैट टाइम ओनली मुझे, मेरे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट को ये फंक्शन पे जाना है, ये स्टेटमेंट को ये वाले फंक्शन पे जाना है. अगर if by chance it does not matches the arguments or the function name is incorrect, so at that time during the compile time only it will give you an error. Okay, यहाँ पे ये error है कि मैं argument मैच नहीं कर पा रहा हूँ या ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, फंक्शन ओवरलोडिंग में जनरली व्हाट हैपेंस, यू हैव एरिया 5, I have area S and I have area 6 P and Q. ओके, मैंने कॉल किया void main में, void main में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज x, and I write x dot area 5 and I write x dot area 6 and 10. Okay, so over here during the compile time only the compiler comes to know that इस area को इसमें जाना है and इस area को इसमें जाना है. And if by chance I write over here 6.6, okay, so at that time during the compile time only it will give me an error that this argument does not matches, okay, or this is an incorrect member function, whatever it is. Okay, so that is compile time polymorphism. As the errors or the the compiler knows the information before in hand, this compile time polymorphism is also known as early binding. एग्जाम में ऐसा भी आता है, इसलिए मैंने पहले आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन. मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा. अरे आज मुझे दूसरे बैचेस ने भी बोला मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है आपका. आज क्या प्रॉब्लम हो गया? यस मैम, क्लियर नहीं दिख रहा. एक सेकंड, अभी ठीक है मैम. पर मेरा अभी मैम बेटर. हाँ मैम. ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम ओनली, जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तभी ही मेरे कंपाइलर को पता चल जाता है कि कहाँ पे जाना है. सो दैट इज व्हाई दिस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म is also known as early binding. Is known as early binding. Okay, and it is also known as static binding. Why static? Because it is fixed. It is fixed in my void main, in my main जहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन होता है, कि इस एरिया, कि मेरे इस एरिया को इस एरिया में ही जाना है और मेरे इस मेंबर फंक्शन को उधर ही जाना है. दैट इज व्हाई फंक्शन ओवरलोडिंग कम्स अंडर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट इज आल्सो नोन एज अर्ली एंड स्टैटिक बाइंडिंग. आपको एग्जाम में आता है अर्ली, लेट, स्टैटिक, डायनामिक. ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट what is compile time polymorphism and runtime polymorphism नहीं पूछेंगे. ऐसे भी पूछ सकते हैं कि explain early binding and late binding, explain static binding and dynamic binding. Okay, so the answer is same. Okay, so got it why functional overloading comes under compile time polymorphism. Okay, and this operator overloading we will do it in the next class. At that time I will explain it. Now runtime पॉलीमॉर्फिज्म में ड्यूरिंग द रन, ओके, जब मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, जब मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसका भी एक मैं आपको वर्चुअल फंक्शन एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगी. वो एक्चुअली एग्जाम में थ्योरी में नहीं आता है. थ्योरी में सिर्फ 1 या 2 बार आया है. इट इज नॉट, बट ये प्रैक्टिकल में आता है. वर्चुअल फंक्शन का एक प्रैक्टिकल है. उस प्रैक्टिकल प्रोग्राम को लेके आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई विल क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि वो कैसे रन होगा. ओके, सो दिस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग, अर्ली, हाँ, लेट बाइंडिंग एंड
It is also known as dynamic binding. Late and dynamic. What happens is कि मेरे पास दो क्लासेस हैं, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, ओके, और डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पहले मेरा एक पॉइंटर बनाऊंगी मैं, वो पॉइंटर पहले बेस क्लास को पॉइंट करके उसके स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा, फिर वही पॉइंटर सेम पॉइंटर will point to the object of derived class, and then it will print the statements of derived class. So through one pointer I am pointing to two different objects. So मेरे first statement में I will say pointer p, you point to x, okay, and then I will write p print whatever, okay, और मैंने यहाँ पे पॉइंटर p इसको ऐसे डिक्लेयर किया, and then in the next statement I am saying p, now you point to y, and then I say y. So this is dynamic कि इस लाइन के एग्जीक्यूशन होने के बाद, after executing this line, p is changing its pointer, or I can say it is pointing to some other object. So जब तक मेरा ये वाला लाइन रन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप जाता है. सो जब तक मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक मेरा पॉइंटर y को पॉइंट नहीं करेगा. तो ये डायनामिक हो गया. Why? Because it is changing. यहाँ पे कैसा था, स्टैटिक था, एरिया को पता है कि इस एरिया को यहाँ जाना है, ये एरिया को वहां जाना है, बट यहाँ पे रन होने के बाद मेरा पॉइंटर चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाई इट वर्चुअल फंक्शन कम्स अंडर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम द पॉइंटर इज चेंजिंग इट्स पॉइंटर, आई कैन से, ओके, कि जिसको उसको पॉइंट होना है. सो दैट इज व्हाई इट इज लेट बाइंडिंग एंड dynamic binding. So we will see this topics virtual function and operator overloading in the next class. Okay, so this is my whole topic, polymorphism. It is nicely given in the notes, and it is a 4-mark topic. It comes for 4 marks. So 1 mark for just stating that polymorphism, poly means many and morphism means form, and then you draw this diagram. And then compile time के अंदर आप लिख दो कि compile time में I have function overloading and operator overloading, wherein different 2 member functions have the same name. वही function overloading वाला concept लिख दो, और run time के अंदर लिख दो virtual function. Just 2 to 3 lines पे लिखा, then also you will get full 4 marks. Okay. So what do you mean by the term static? Can anyone tell me? It does not move. It does not move. What is the constant meaning? Constant means Does not the value change. is not going to change. Okay, but static में the value changes. If you declare any variable static, any data member static, its value changes. I'll give you a very simple example of static data member. Maybe you will understand it, and then I will relate it to the program. Okay, you have I don't know what coding Facebook uses, but I'm just giving you an example to make the topic simple. Okay, like Facebook में everyone knows that there is like, comment and share, right? अब जितने लोग उसको लाइक करेंगे, जितने लोग उस फंक्शन को लाइक करेंगे, सपोज मैंने एक पिक अपलोड की है और उसका मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया है स्टैटिक इंट. स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. मैंने एक बना दिया दैट स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 0. ये एक लाइक का फंक्शन हो गया. एक मैंने कमेंट का फंक्शन बना दिया दैट स्टैटिक इंट b इज इक्वल टू 0. एक मैंने शेयर का कमेंट बना दिया स्टैटिक इंट c इज इक्वल टू 0. नाउ person
one person is coming, my friend is coming, he is liking that photo. उसने उस like button को click किया. When the person has clicked that like button, okay, at that time, according to a coder, okay, that function is called, जो int a is equal to 0 जो मैंने function बनाया था like वाला, that function is called, okay, so वहां पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा. और एक बंदा आया और एक मेरी सेकंड फ्रेंड आई, उसने वापस वो पिक को लाइक किया, अब उस a का वैल्यू 2 हो जाएगा. सो जितने लोग उसको लाइक करते जाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स, नाउ आई एम रिलेटिंग इट टू द प्रोग्राम, जितने ऑब्जेक्ट्स उसको हिट करते जाएंगे, मतलब वो वेरिएबल एक ही है. अब चाहे वो बंदा दुबई में बैठ के क्लिक करे लाइक बटन, या वो बंदा खारगर में जाके उसको क्लिक करे, या वो बंदा पुणे में बैठ के लाइक बटन क्लिक करे, वो कहीं पर भी बैठ के क्लिक करे मेरी पिक को, ओके, लाइक बटन क्लिक करे, उस वेरिएबल, वो जो वेरिएबल है a, वो मेरा इंक्रीमेंट होता जाएगा. सो जितने भी ऑब्जेक्ट, सेम वेज इन द प्रोग्राम ऑल्सो, सपोज आई हैव अ फंक्शन, ओके, और मुझे काउंट रखना है कि वो फंक्शन मेरा कितनी बार कॉल हुआ है थ्रू n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थ्रू n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ यू नो दैट a class can have n number of objects. उसके 10 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एक ही ऑब्जेक्ट से मैं उसी फंक्शन को 5 बार भी कॉल कर सकती हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट से मैं उसको 5 बार भी कॉल कर सकती हूँ. सो दैट वेरिएबल इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स. नहीं तो जनरली व्हाट हैपेंस, अगर सपोज मेरे पास लाइक फंक्शन के अंदर वेरिएबल a भी है, ओके, और एक वेरिएबल स्टैटिक इंट c इज इक्वल टू 0 भी है. सो और मेरे पास ऑब्जेक्ट है x, y एंड z. सो x के लिए a b का वैल्यू 5, 6 है, ओके, और c का वैल्यू जो स्टैटिक वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको कॉल किया. y के लिए a b का वैल्यू कुछ और होगा, बट जो c का वैल्यू है वो कुछ और नहीं होगा, जो प्रीवियस वैल्यू था 1 उसमें वो ऐड हो जाएगा 2. मतलब दैट c रिमेन्स, दैट स्टैटिक वेरिएबल c रिमेन्स कॉमन टू x, y एंड z. अब चाहे मैं उसको x के थ्रू 3 बार बुलाऊं तो c का वैल्यू 3 हो जाएगा, y के थ्रू मैं उसको 2 बार बुलाऊं तो c का वैल्यू 5 हो जाएगा, z के थ्रू मैं उसको 5 बार बुलाऊं तो c का वैल्यू 10 हो जाएगा. मींस इट जस्ट कीप्स अ काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड. तभी तो आपको वो लाइक, कमेंट और शेयर दिखते हैं ना कि 40 लाइक्स, 40 कमेंट्स, इतना व्यू हुआ है, ओके. ये जो हिट इसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में. when you open a website, when you load any website, it is known as hitting the website. You hit the website. So वैसे ही जितनी बार आप Google हिट करते हैं, google.com, तो वो एक बार हिट हो गया, मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने वापस ओपन किया 1 मिनट के बाद, वो सेकेंड टाइम हिट हुआ है. कोई और बंदा बैठा है, आप अपने घर पे बैठे हो, आपने google.com खोला है, सो वो थर्ड टाइम हिट हो गया. ऐसे करके we know the number of viewers, how many people have opened google.com in a day. So a variable, only a variable keeps an account. जितनी बार google.com कॉल होगा उतनी बार वो हिट होता जाएगा वेरिएबल, और उतनी बार उस वेरिएबल का काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा. दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर. Got it? क्या होता है इन शॉर्ट, मैंने जस्ट आपको एक ये रियल लाइफ का एग्जांपल दिया है कि स्टैटिक कैसे होता है. जैसे कभी आप मॉल में भी एंटर करते हैं तो काफी टाइम जब आप उससे पास होते हैं तो एक बीप बजता है, टिंग टिंग टिंग. सो वो उसके लिए भी है, उससे भी आप कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप काउंट रख सकते हैं कि कितने
बंदे मेरे मॉल के अंदर घुसे हैं, how many people have entered the mall, that also you can check. But I feel that this Facebook example is more than enough to explain static data member. I have just 10 minutes. I'll static int a is equal to 0 मैंने लिया है और मैंने एक वेरिएबल लिया है b. I have used void get data and I have set the user to enter the value of b. Now here I am saying a is equal to a plus 1. a is obviously मुझे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा ना. जब मैं बोल रही हूँ कि लाइक बटन पे हिट हुआ, वो 1 हो गया, वो 2 हो गया, वो 3 हो गया, वो 4 हो गया, बट वो कैसे हुआ मुझे तो कोडिंग में लिखना पड़ेगा ना. So मैंने a is equal to a plus 1 लिखे, count is equal to a मारा है. Now in a1 I've created an object. Okay, I've created an object a1. Now you see I write a1 dot get data. This will go up, execute this step. Okay, सी आउट b, उसने b का वैल्यू मांगा यूजर से, यूजर ने एंटर किया सपोज 10. नाउ a is equal to a plus 1, count is equal to 1. Correct? Now again the next line a1 dot get data. Again the program will go up, execute this step. It will say enter b. Suppose मैंने 20 एंटर किया, count is equal to how much? 2. 2. Count is equal to 2. By chance मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया है a2. एक ही क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए. I write a2 dot get data. Again a2 dot get data is going up. Enter b. I enter 30. Count is equal to 3. See, count is equal to 3. So there is a common, एक डायग्राम मुझे बना. Okay. There is a common of ये जो मेरा a है ये static variable है and this is common to a1 object also and a2 object also. Okay, object 1 object 2 वो common है over here. So that's my static data member. I hope everyone has understood the topic very clearly, that what is it. Okay, Yes, ma'am. okay, just give me a thumbs up if everyone has understood. मैम जो आपने एग्जांपल दी ये वो लाइक वाला है क्या? हाँ, ये आप इसी को आप लाइक भी बना सकते हो ना, लाइक वाला एग्जाम्पल बना दो आप इसको. अगर मैंने हाँ, यहाँ तो पे इसमें B क्या स्टेटमेंट्स कर नहीं रहा तो है? बोलो. अगर ये लाइक के सिस्टम है तो यहाँ पे B क्या कर रहा है? हाँ, मैंने नोट्स वाला एग्जाम्पल लिया है थोड़ा सा. अगर मैं इसको लाइक वाला कर रही हूँ तो यहाँ पे बी की कोई जरूरत नहीं है. मुझे आपको ये बताना था कि बी का वैल्यू बार बार वो आपको पूछेगा, चाहे आप a1 डॉट गेट डेटा से कॉल करो या a2 से. इसलिए मैंने बोला ना, मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है क्विकली थोड़ा समझाने के लिए. ओके, अगर ये लाइक वाला है तो आपको ये सी आउट सीन की कोई जरूरत ही नहीं. आपने बस लाइक का एक फंक्शन बनाया और काउंट कर रहे हैं आप. इसमें गफला क्या है, अगर मैं a is equal to a plus 2 लिख देती हूँ, so the count will be double. जो इंक्रीमेंट a1 से हो रहा है वो मेरा 2 से होगा. मतलब अगर मैंने हिट किया तो 1, तूने हिट किया तो 3, काउंट 3 हो जाएगा. उसने हिट किया तो काउंट 5 हो जाएगा. किसी और ने हिट किया तो 5 हो जाएगा. ओके, so there are some rules for writing static data member. I don't have much time. It's hardly any time left, 3 minutes. So the basic rule which has is that static data member, okay, always starts from 0. उसका जो starting value होगा वो हमेशा 0 से ही start होता है. Okay, can access only static members. Okay, आपको कंस्ट्रक्टर में भी मैंने एक टॉपिक, एक पॉइंट था कि कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, दे कैन बी स्टैटिक. सो यही है वो स्टैटिक. इसमें एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. ओके,
So that's the topic, polymorphism and static data